morning class as we know that we are going through chapter 8 from Hornbill, and the title of the chapter is Silk Road. Children, this chapter is written by Nick Middleton, and in this chapter we have read the author describes his adventurous journey to Mount Kailash. Okay, children. In the previous lecture, we have read that the author reached several places. First, he reached Rabu, then Gaur, and finally Darchan. And when the author reached Darchan, he was feeling that his physical condition was not so good. देखिए बच्चों, जब लेखक दार्चन पहुंचा तो उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं थी. He was suffering from cold and he was unable to breathe properly. जुकाम था उसे और उसके जो नॉस्ट्रल्स थे बंद हो गए थे. And he was thinking that he was unable to take sufficient amount of oxygen as he was at a great height. So children, when he reached Darchan, so his driver Setan took him to Darchan Medical College. And today we shall start from the third paragraph of page number 79. Now see the paragraph. Setan took me to the Darchan Medical College the following morning. कहता है अगली सुबह सेतन मुझे दार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गया. So the medical college at Darchan was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. देखिए, the author also tells us how the medical college looked like. कहता जो मेडिकल कॉलेज था दार्चन में वो एक मॉनेस्ट्री जैसा दिखाई देता था, एक मठ जैसा दिखाई देता था, जिसका एक सॉलिड डोर था जो हमें एक बड़े कोर्टयार्ड की ओर ले जाता था. We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who bore none of the paraphernalia that I had been expecting. तो देखिए, कहता है जिस रूम में हम पहुंचे तो the room was dark and cold where a Tibetan doctor was sitting. जहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा हुआ था, एक तिब्बती डॉक्टर बैठा हुआ था. एंड जो जिसने मेरी अपेक्षा के विपरीत कोई निजी उपकरण धारण नहीं किया था. As the author thought that the doctor was wearing or having different apparatus with him, it was not so. No white coat. He looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. And he was also not wearing white coat. न सफ़ेद कोट पहने हुए था और वह किसी दूसरे तिब्बतन के समान लग रहा था, तिब्बती व्यक्ति के समान लग रहा था जो एक मोटा ऊनी पुलोवर और एक वूलन हैट लगाए हुए था, वूली हैट लगाए हुए था.
तो when I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. तो देखिए, the author tells कि when I explained my sleepless symptoms to the doctor, कहता जब मैंने डॉक्टर को अपने sleepless symptoms के बारे में बताया, जब मैंने डॉक्टर को अपने नींद ना आने के लक्षण के बारे में बताया और अचानक मेरी न सोने की इच्छा के बारे में बताया, तो ही शॉट मी सम क्वेश्चंस, ही पुट अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम मी, उसने मुझसे कुछ सवाल किए, कुछ क्वेश्चंस पूछे जब वो मेरी कलाई देख रहा था, when he was feeling my pulse. It is a cold, he said finally through Satan. अब देखिए, सेतन के माध्यम से उसने मुझे बताया कि इट इज सिंपली कोल्ड, ये केवल जुकाम है. ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड, कहता है कोल्ड है और आल्टीट्यूड का प्रभाव है. इट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट, बिकॉज they were at a great height in the hilly area from the sea level. तो डॉक्टर ने सिंपली कहा कि जुकाम है और ऊंचाई का प्रभाव. एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, और मैं इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा. आई विल गिव यू सम मेडिसिन फॉर इट. आई आस्क्ड हिम if he thought I would recover enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said, you will be fine. तो कहता है the author asked the doctor if he would be able to complete his Kora, fulfill his desire. तो author कहता है मैंने डॉक्टर से पूछा क्या वे सोचते थे कि मैं कोरा करने के योग्य हो जाऊंगा. तो डॉक्टर answered, yes, why not? You will be fine. You will be रिकवर्ड वेरी सून. तो देखिए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे. आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर. तो द डॉक्टर gave the author some medicine, and with that medicine the author came out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. कहता है मैं मेडिकल कॉलेज से 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, 15 दवाई की पुड़ियाँ, 15 जो स्क्रूज ऑफ पेपर थे जो डॉक्टर ने मुझे एनवलप में रखकर दिए थे, मैं उन्हें लेकर बाहर आया. आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन which I started right away. मेरे पास तिब्बतन मेडिसिन का 5 days कोर्स था, 5 दिन की दवा दी थी डॉक्टर ने मुझे. एंड आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर. कहता है मैंने ब्रेकफास्ट के बाद लेने वाली दवाई का पैकेट खोला एंड फाउंड, और पाया कि दैट इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर, कि इसमें ब्राउन पाउडर रखा हुआ था, दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जो मुझे गर्म पानी से लेना था, हॉट वाटर से लेना था. इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, जिसका टेस्ट मीन्स दालचीनी जैसा दिखाई लग रहा था. सिनेमन मीन्स ए काइंड ऑफ स्पाइस. Children, the contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. अब कहता जो लंच टाइम के बाद या जो मीन्स बेड टाइम के समय जो लेने वाली मेडिसिन का जो पैकेज था, उसकी मेडिसिन को पहचानना थोड़ा कठिन था. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ऑथर टू आइडेंटिफाई दैट मेडिसिन.
बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, दोनों ही पैकेट में मीन्स ब्राउन कलर की छोटे छोटे पैलेट्स थी, छोटी छोटी टैबलेट्स थी, पैलेट्स मीन्स टैबलेट्स। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, जो कि शीप डंग के समान दिखाई देती थी, भेड़ के गोबर के समान दिखाई देती थी, लगती थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन वास्तव में मैंने उन्हें लिया। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स, और उस रात्रि जब मैंने अपना फर्स्ट डे कोर्स पूरा किया, उस रात्रि जब मैंने अपना एक दिन का कोर्स पूरा किया, आई टुक द फुल डे कोर्स, आई कंप्लीटेड द फुल डे कोर्स, तो आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, तो द ऑथर स्लेप्ट वेरी साउंडली एंड पीसफुली। तो कहता है उस रात्रि मुझे अच्छी नींद आ गई। लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन, तो कहता है कि द ऑथर वॉज स्लीपिंग लाइक ए लॉग नॉट लाइक ए डेड मैन। Once he saw that I was going to live, Satan left me to return to Lhasa. अब देखे, एक बार जब उसने देखा कि मैं अब आराम से रह सकूंगा, जी जाऊंगा, तो सेतन मुझे छोड़कर लासा वापस लौट गया। Now Satan also left the author and the author was left alone. As a Buddhist he told me, और बुद्धिस्ट के रूप में उसने मुझे बताया कि he knew that it did not really matter if I passed away. उसने मुझे ये भी बताया, एक बौद्ध के रूप में उसने मुझे बताया कि मैं जानता था अगर मैं मर जाता तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। It didn't really matter, but he thought it would be bad for business. लेकिन वह सोचता था कि ये उसके बिजनेस के लिए बुरा होगा। So children, that's all in this lecture. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.